Welcome back, student. So today we are going to start our first JE chapter, Thermal Properties of Matter, Part 1, from the subject Physics of Standard FYGC. Okay. So when we are thinking about the JE, right? So your basics should be clear as well as your 11th knowledge, और मैं बोल सकता हूँ कि जो बोर्ड का जो मैटर है that has to be very clear, right? So जब आप इसको क्लियर करते हो उसके बेसिस पे obviously you will able to move further very quickly because it has formulas, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जेई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, right? As well as just want to tell you about the JEE is like कि we have some part in the blue section of your textbook, right? आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारी जगहों पे ब्लू में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई है, right? So those are major targets for the JEE नो एग्जाम्स. सो उस पर जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है वो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई के लिए, राइट? सो whenever you are going through a टेक्स्ट बुक, थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के वो ब्लू वाला भी आप पढ़ लो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू दिस विद द thermal properties of matter of JE part, right? Let's do some small recap of what we have seen. Okay, in the for the I can say for the chapters. Okay, so just I'll show you the PPT which we have already gone of board. Yeah, so we have learned about the heat, right? So when we are talking about the heat, right, always first thing which is comes in my mind is nothing but heat is energy, right? So heat को denote करने के लिए we have certain units. SI units में हम उसको joule बोलते हैं. CGS में we have erg, right? Also we can call it in terms of kilocalorie as well, right? Or calorie as well, right? Heat का जो dimension है which is nothing but this, right? As well as we have one more physical quantity we call it as a temperature, right? So which defines the thermodynamic state of a system, right? इसको define करना है किसी का कि इसमें कितना heat है, तो एक particular way से temperature से भी हम define कर सकते हैं, right? So there are SI units, Kelvin or Celsius, and its dimension is this. Then measurement of heat, measurement of temperature, इसको एक साइंस में एक वे है जिससे हम उसको मेजर कर सकते हैं. वी कॉल्ड इट एज थर्मोमेट्री. ओके, and in terms of when we are talking about specific to a temperature, so there are certain things like freezing point, ice point, melting point, okay, as well as there are some points like steam point or boiling point. ये सारे specific होते हैं at given temperature, at given pressure. Okay, at certain pressure, standard atmospheric pressure, this ice point, freezing point, melting point, as well as steam point, boiling point, ये सारी चीजें constant होती हैं. So for a temperature convention, मतलब एक standardized way में with help of water उन्होंने क्या लिया है कि एक आइस को मेल्ट होने के लिए 0 डिग्री लगती है या आइस को बनने के लिए 0 डिग्री लगती है, एज वेल एज एक वाटर को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री लगती है, राइट? सो दीज आर द स्टैंडर्ड values which we usually take in our experiments at constant pressure. Then we have a temperature scale. Okay, there are specifically 3 temperature scale we have. एक है मेरा सेल्सियस, दूसरा है मेरा फ़ारेनहाइट, ओके, और तीसरा है मेरा केल्विन. ओके, सो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में ये रिलेशन. देन वी हैव अ फ़ारेनहाइट स्केल, सॉरी केल्विन स्केल, जिसमें एक टर्म है वी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट? सो हमेशा याद रखना एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब डेड एंड होता है नेगेटिव वे में आपके टेम्परेचर, नेगेटिव स्केल पे आपके टेम्परेचर के लिए. मतलब we cannot do anything less than this. मतलब we never ever make a temperature which is lesser than this minus 273.15 degree Celsius. Okay, इसके नीचे हम टेम्परेचर लेके ही नहीं आ सकते, right? It is possible for all 3 phases, solid, liquid and gas, vapor to coexist in equilibrium. This is known as triple point. तो ये है मेरा ट्रिपल पॉइंट. ओके, जहाँ पे तीनों स्टेट ऑफ मैटर मैं देख सकता हूँ, वो पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. यूजुअली ये 3 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है. ओके, जस्ट नोट इट डाउन इफ यू डोंट नो. ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट बिकॉज ये तीनों स्टेट यहाँ पे क्या होती है, एग्जिस्ट करती है. अगर मुझे एक फॉर्मूला लिखना है जहाँ पे TC, TF एंड TK, अगर तीनों का अगर मुझे रिलेशन है कि इक्वेशन में बताना है, सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन. ओके, जहाँ पे
I can convert Kelvin into Fahrenheit or Fahrenheit into Kelvin or Kelvin into degree Celsius or degree Celsius into Fahrenheit, anything. So this is a common equation for them. Then I have an ideal gas equation using Charles law. Charles ने क्या बोला कि pressure constant रख के I will get one equation which is V divided by T constant. और बॉयल ने क्या बोला, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूँ तो मुझे PV इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा. एंड देयर इज अ Gay-Lucas लॉ एज वेल व्हिच इज वी कॉल्ड एज अ प्रेशर लॉ, जिसने बोला कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर. So the relationship between all this pressure, temperature and volume, we called it as a gas equation. Okay, therefore PV equal to nRT, where R is the universal gas constant, which is value is always constant 8.31, and N is nothing but number of moles, okay, for a given mass. So PV equal to nRT is very famous equation for any gas law. It obeys almost all the gases. Then we have a types of expansion of my solids. Okay, so for based on the thermal, it's a thermal expansion. So first is a linear expansion, जिसमें length खाली एक ही direction में बढ़ेगी. Then यहाँ पे अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो change in length divided by original length will be equal to alpha into delta T, where alpha stands for coefficient of linear equation. Okay, and this depends upon the material. Similarly, areal expansion, जहाँ पे 2 dimensions में क्या हो रहा है, मेरा area बढ़ रहा है, so that's why it is called as the areal expansion. And the coefficient of areal expansion is denoted by beta. It depends on the material of the solid. Okay, and this is having this equation. Then we have a volume expansion in which 3 direction में मेरा particular volume या object I can say expand हो रहा है. In that case, gamma is the coefficient of expansion of volume. Then, and it also depends upon the material of the solid, right? And its formula is like this. Then therefore then we have specific heat capacity. So specific heat का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर उसका खुद का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट उसको लगेगा, राइट? सो दैट वी कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट टू दैट पर्टिकुलर मटेरियल, राइट? सो it defines as the amount of heat per unit mass absorbed or given out by a substance to change its temperature by 1 unit or 1 degree or 1 Kelvin. तो हम उसको बोलेंगे मेरा specific heat. Okay, so for different material they have a different specific heat. Okay, some materials are quickly they get, I can say, heated, so the specific heat is very much higher. Okay, but in some cases it is very low. So molar heat specific for the gases. Okay, अभी गैस में क्या होता है, specific heat होती है, but वो in terms of moles हम लोग calculate करते हैं, right? So usually in terms of fluids, the specific heat comes into the picture. So molar specific heat दो टाइप के होते हैं. एक होता है at constant volume जिसको हम बोलते हैं CV, और दूसरा होता है at constant pressure जिसको हम बोलते हैं CP. Okay. Now there is a concept of latent heat. Okay, so latent heat का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इतना अमाउंट ऑफ हीट जो एक मैटर के एक फेज को दूसरे फेज में कन्वर्ट कर सके, और आई कैन से वन स्टेट इट कन्वर्ट्स वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट. तो जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा दैट वी कॉल्ड एज अ लेटेंट हीट. जैसे आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो आपने देखा रहेगा जैसे 100 डिग्री रीच होता है माय लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, राइट? सो इवन दो मेरा पर्टिकुलर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, बट स्टिल आई एम कीप ऑन गिविंग इट एज अ हीट एट वेरी लार्ज अमाउंट. तो वो हीट कहीं ना कहीं जाके ये लेटेंट हीट में कन्वर्ट होके उसको कन्वर्ट कर देता है, राइट? अंडरस्टूड? सो माय वाटर विल हीट ओनली एट 100, उसके 110 120 ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट? तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट कहाँ जा रही है? सो वो हीट कन्वर्ट हो रही है लेटेंट हीट में. और लेटेंट हीट मतलब क्या, कितना अमाउंट ऑफ मेरा हीट रिक्वायर्ड है टू चेंज द स्टेट ऑफ वन मैटर इनटू अनदर. मतलब वाटर को गैसियस स्टेट में लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ओके, उतनी हीट ये लेटेंट हीट हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, राइट? देयरफॉर Q will be equal to M into L. SI unit is normal, which is joule kilo inverse. Then latent heat of fusion and vaporization. फ्यूजन का मतलब क्या कि एक कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में, विच इज आइस टू
नॉर्मल लिक्विड, और वेपोराइजेशन मतलब मेरा liquid state to vapor state में जो convert हुआ है. So there are two types of latent heat we have in terms of water. Then heat transfer. So there are total 3 ways that I can transfer the heat. First is a conduction, second is a convection, third one is a radiation, right? So conduction में क्या होता है? The conduction is process by which the flow of hot end to the cold end of the solid body without any net bodily movement of particle. मतलब इसमें particle या body move नहीं होती कोई भी particle move नहीं होता from one point to another point. वो केस में मुझे क्या मिलता है? हीट ट्रांसफर मिलता है. वो जो टाइप होगा उसको मैं बोलूंगा कंडक्शन. ओके, सो थर्मल कंडक्टिविटी, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट. जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं तो ऑब्वियसली इफ यू आर यूजिंग नॉन वुडन वाला और मेटल वाला आई कैन से स्टेरर, तो वो केस में क्या होता है? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द हीट यू कैन फील इट एट द एंड ऑफ द स्टेरर, राइट? सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कंडक्शन. Now next is the coefficient of thermal conductivity. Again, we can define it as a Q is nothing but total amount of it given. Okay, so point from one T1 to T2, अगर यहाँ से यहाँ अगर उसको travel होना है तो obviously distance is also coming into the picture. So, और बहुत सारी चीजें भी effect करती है. So therefore the coefficient of thermal conductivity can be defined as K is equal to amount of it into distance divided by A in bracket difference in the temperature into time. Then convection. Convection is nothing but where actual movement of molecule happen from one point to another, like air condition or micro oven, right? जिसमें actual में heat molecules या liquid के molecules, gas या liquid के molecules one point to another point में heat transfer करते हैं, मतलब उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे देते हैं. So that is nothing but convection. Okay, so bulk movement of molecules within the fluids. फ्लूइड्स में 2 टाइप होते हैं, एक होता है गैस, दूसरा होता है लिक्विड. ओके, फ्लूइड मतलब जो फ्लो करता है. देन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, यस वी नो दैट. देन रेडिएशन. दिस इज नथिंग बट रेडिएशन, इट्स अनदर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द हीट इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. ओके, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा. ओके, या हम लोग उसको बोलते हैं फोटॉन्स. ओके, सो द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी without hitting the intervening medium, it is called as a radiation. The best example, sun to earth, जो radiation, जैसे आप धूप में बाहर निकालते हो हाथ, तो you will feel some heat. So that is nothing but because of electromagnetic energy. और वो heat energy वहां से यहाँ ये फॉर्म में ट्रांसफर होती है. Now there is a concept called as a Newton's law. Newton's law ने ये बोला था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा of the hot body with the surrounding, उतना फास्ट मेरा क्या होगा, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कूल होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये पता चला कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है वैसे वैसे उसका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी मेरा क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, राइट? तो जब ये टेम्परेचर डिफरेंस हाईएस्ट होगा तब मेरा रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट होगा. ओके, मतलब ऐसे देखा गया है कि जब भी आप नहाने के लिए कुछ गर्म पानी बनाते हो, इफ दैट वाटर इज वेरी आई कैन से हॉट, राइट, सो इन दैट केस विद इन 5 to 10 मिनट्स वो थोड़ा सा कूल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल वार्म हो जाता है. ओके, सो इसका मतलब क्या, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 मिनट में अगर इसका इतना टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर अगर आ रहा है तो नेक्स्ट 10 मिनट में ये तो फ्रीज होना चाहिए, राइट? बट इट नॉट हैपन. That warmer water will remains warmer for very long period of time. Why? Because उसका rate of fall of temperature कम हो गया, because उसका surrounding के साथ जो temperature difference था वो कम हो गया, right? And this is what we called as a Newton's law of cooling. अगर ऐसे होता था कि hot water 10 मिनट में अगर 40 डिग्री कम हो रहा है तो next 10 मिनट में वो 20 डिग्री पे आना चाहिए, right? Next 20 I can say 40 मिनट में it should go -20. No, but it will never happen, right? Why? Because Newton's law of cooling comes over there. Okay, so it completely depends on the difference. Okay, yeah, so now we will just go through, we have already gone through the entire chapter, right? Now we will just focus upon the
JE part. Okay. So the topics which are very important in our JE, like temperature and heat, which we have already seen all this, measurement of temperature, thermal expansion, then specific heat capacity, इसमें दो है, solid की as well as solid and liquid की as well as gaseous की. And gaseous में again there are two types, molar specific heat at constant volume, molar specific heat at constant pressure. Then we have a calorimetry, then latent heat, heat transfer, Newton's law of cooling. Right? Chalo. Now I am giving you a time of 5 minutes to note down all these formulas. First, you can write it down on your notebook. First is for conversion. When we are converting a Celsius to Fahrenheit, which is TF minus 32 divided by 180 will be equal to TC divided by 100. So in this formula, if you know the value of TC or TF, मतलब temperature in Fahrenheit अगर आपको पता है या temperature in Celsius आपको पता है, so using this equation, you can easily convert them into one after another. अगर TC दिया होगा तो you can find out TF, अगर TF दिया होगा तो you can find out TC. Now below one, in which first we have already seen, second है Celsius to Kelvin या Fahrenheit to Kelvin. तो इसका ये पूरा फॉर्मूला है. नाउ सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर, मतलब आपका जो थर्मोमीटर है वो कितना सेंसिटिव है, राइट? वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So T will be equal to 100 in bracket PT minus P1 divided by P2 minus P1. Then gas law equation, famous equation, PV equal to nRT. Then ये सारे expansion के हैं, linear expansion, change in length divided by L will be equal to alpha into delta T, और अल्फा को हम लिख सकते हैं ऐसा, change in length divided by original length at 0 degree Celsius minus change in temperature. Okay, and then here we are just changing the length with the area, and coefficient of expansion also we will change to beta. Then volume, thermal expansion. Delta V divided by V will be equal to gamma into delta T. So different ways that you can write it down, these equations. Okay. Okay. Next, the relationship between the coefficient of expansion. So first is beta is also equal to 2 into alpha. जो हमने just देखे पहले वाले उसका ही relationship है अल्फा बीटा gamma के साथ. Gamma is also equal to 3 alpha. And therefore, alpha is equal to beta by 2 equal to
gamma upon 3. Then specific heat capacity of solid and liquid, S is equal to delta Q divided by M into delta T. Change in heat divided by mass into change in temperature. Then molar specific heat denoted by C. C is equal to 1 upon mu into delta Q divided by delta T. So here the principal specific heat of gas and molar specific heat of gas. So ये अलग अलग होता है. So in case of solid and liquid, we denoted by small s, but in case of gaseous, we have to denote by a capital S. Okay, हमेशा याद रखना. Okay, so solid में छोटा, gaseous में बड़ा S. Okay, so therefore the Cp will be equal to mu into Sp and Cv will be equal to mu into Sv, where S is nothing but my principal specific heat and Cp, C is nothing but my molar specific heat. Then heat equation, Q is equal to M equal to, sorry, Q is equal to M into delta T into S. इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोवाइडेड की गई है उसके हिसाब से वी विल गेट द इक्वेशन. So temperature difference will be with the surrounding. Okay, so from that equation S will be the specific heat. कितना टेम्परेचर, सॉरी कितना हीट 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए मेरा गिवन मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है या उसको बाहर फेंक रहा है. सो दैट इज माय स्पेसिफिक हीट. देन हीट कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड विथ Q is equal to M into S, where M stands for the mass, S stands for the specific heat. Okay, for the conduction we have already seen this, which is Q is equal to K in bracket K into A in bracket T1 minus T2 into time divided by distance. So via conduction we can find out this, and this is the coefficient of conduction which is noted by small k, which is equal to Q into X divided by A in bracket difference in temperature into time. So this is quantity of it. Then we have a Newton's law of cooling, which is delta T, dt divided by dt will be equal to C in bracket T minus T0. Okay, so all these formulas are very much important. Okay, because whenever there is a formula, yes, there is a high chance कि उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आएगा, right? And this is one of the easiest one जहाँ पे formulas are very much simple, ज़्यादा कोई difficult नहीं है, right? So easy for remembering it, right? So थोड़ा Q and S के यहाँ पे थोड़ा सा संभाल लेना. You should know exactly what you mean by Q, what you mean by S, right? What is the M, delta T कब आता है, delta Q कब आता है, right? So once you know this, then there is no issue. And last one is Newton's law of cooling, which is we have already seen this. dt divided by dt will be equal to C into difference in temperature. C is the constant for a specific material. Okay. Okay, let's solve a few questions.
Okay, so first you can read out the question. In order that the heat flows from one part of solid to another part, what is required? Okay, हीट को वन पार्ट टू अनदर पार्ट में मूव होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट? यूनिफॉर्म डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन इट? आई डोंट नो, यू टेल मी. आप चैट में आप मुझे आंसर दे सकते हो यहाँ पे. ये तीनों में से ए बी सी डी में से क्या आंसर सही रहेगा? पहले क्वेश्चन को समझ लो कि हीट फ्लोज फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ सॉलिड टू अनदर पार्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड. मतलब अगर हीट को एक गिवन सॉलिड में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव होने के लिए क्या रिक्वायर्ड? यूनिफॉर्म डेंसिटी रिक्वायर्ड है. मतलब हीट ट्रांसफर के लिए कभी डेंसिटी का आपने सुना है कि डेंसिटी मैटर्स? नो, डेंसिटी डज नॉट मैटर, राइट. अगर डेंसिटी मैटर नहीं करता तो डेंसिटी ग्रेडियंट भी मैटर नहीं करेगा, राइट, बिकॉज डेंसिटी एक गिवन मटेरियल का सब जगह सेम होता है. ओके, देन यूनिफॉर्म टेम्परेचर. आपको लगता है कि अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा तो हीट फ्लो होगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड? नेवर, राइट. सो यूनिफॉर्म टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, राइट, बिकॉज अगर यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा तो कभी भी, मतलब दैट पर्टिकुलर सॉलिड ऑलरेडी इट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उसको मूव होने की जरूरत ही नहीं है. तो हीट तभी फ्लो होगा व्हेन फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा या टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, राइट. सो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या है स्टूडेंट? डिफरेंस. ओके, सो ग्रेडियंट मतलब क्या? एक डिफरेंस होना, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट. जब भी टेम्परेचर ग्रेडियंट ग्रेडियंट होगा तभी मेरा क्या होगा, हीट फ्लो होगा फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, राइट. सो उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट. देन दूसरा है मेरा क्वेश्चन विच इज हाउ मच वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी. ओके, बिकॉज यहाँ पे हेड लिखा है मैंने, सो इट हैज टू बी अ हीट एनर्जी. ओके, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाउ मच वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी. ओके, सो आपको पता है कि हमने पहले देखा था 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. सो मेरा क्या है, 1 सी ए एल इज इक्वल टू 4.2 जूल, राइट. सो अभी मुझे क्या बोला है कि 100 कैलोरीज के लिए कितना एनर्जी मिलेगा. तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 100 अगर मेरा कैलोरी होता है, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 100 इंटू 4.2 जूल. ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 420. ओके, सो 420 विल बी माई आंसर फॉर दिस. ठीक है, सो मैंने क्या किया, सिंपल मुझे पता होना चाहिए 1 किलो कैलोरी इक्वल टू हाउ मच जूल. ओके, जूल मतलब ही मेरा एनर्जी. ओके, सो अगर मुझे जूल में, मुझे कैलोरी में अगर मुझे पता है उसका रिलेशन, तो सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2, देयरफॉर 100 कैलोरीज विल बी इक्वल टू 420. ओके, सो वर्क इज नथिंग बट एनर्जी ओनली. ओके, सो उसको हम बोलेंगे दिस. सो जूल, 420 जूल मेरा क्या रहेगा, वर्क रिक्वायर्ड रहेगा. ओके,
Good. Let's move to the next. Temperature which has same numerical value on that of Celsius and Fahrenheit. ओके मतलब उन्होंने क्या बोला है कि मेरे पास एक स्केल है. ओके सो एक फ़ारेनहाइट की स्केल है. ओके और दूसरी सेल्सियस की स्केल है. राइट तो इनके स्केल में राइट ओके मुझे पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये -32 देता है. ओके डिग्री फ़ारेनहाइट देता है. राइट तो मुझे जस्ट चेक करना है कि सॉरी +32 देता है. इट्स नॉट -32. ओके सो 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने उल्टा किया. फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. ओके इनके पास क्या होगा अपना एक स्केल होगा. ओके सिमिलरली इसके पास भी स्केल होगा. ठीक है सो ऐसे मान लो कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पे मुझे पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट मेरा 32 है. ओके तो ऐसी कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम होगा. ओके उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे दे शुड हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू नॉट द साइन बट न्यूमेरिक वैल्यू शुड बी सेम. तो मुझे फाइंड आउट करना है. तो मेरे पास एक ऑलरेडी इक्वेशन है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन. -32 divided by 180 okay will be equal to बोलो 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 C divided by 100. ओके तो उन्होंने क्या बोला है कि एट सम पॉइंट न्यूमेरिक वैल्यू शुड बी सेम. इसका मतलब मुझे क्या करना है एक इक्वेशन लेना है जहाँ पे C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू लेट्स से एनी टेम्परेचर. मैं उसको देता हूँ T नाम. ओके नाउ आई हैव टू जस्ट पुट वैल्यू ओवर हियर एंड हियर एज अ T. चलो वैल्यू पुट करो आपके बुक में यहाँ पे और यहाँ पे मुझे T वैल्यू पुट करना है. राइट तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे T पुट करूँगा. तो यहाँ पे मैंने पुट किया T. ओके so now here 100 T minus 32 into 00 so 3200 will be equal to 180 T. ओके सो ये 100 T को अभी यहाँ पे लेके जाओ. सो क्या हो जाएगा 80 T divided by 32. ओके अभी ये 80 को नीचे लेके आओ तो क्या होगा ये 0 गया ये 0 गया सो 40. ओके सो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 40 फ़ारेनहाइट एक ऐसा स्केल है मतलब लेट्स से मानो कि ये स्केल है. ओके जहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है ओके मुझे क्या मिल रहा है 40 सेल्सियस भी होगा और 40 फ़ारेनहाइट भी होगा. सो दिस इज द स्केल दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू. बस ये छोड़ के बाकी सब जगह दोनों का डिफरेंट होगा बट खाली ये जगह पे क्या होगा दिस T will be equal to same for Celsius as well as Fahrenheit. Have you understood this? So the correct answer is -40.
Okay, so correct answer is C. ठीक है, have you लिखा सबने? Okay, चलो, let's move to the next. There is a hole in the middle of copper plate. When hitting the plate, diameter of the hole would be, right? यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल है, आप ही बताओ. एक कॉपर प्लेट है, उसके सेंटर में एक होल है, राइट? जब मैं उसको हिट करूंगा, राइट, वो पर्टिकुलर प्लेट का डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर होल क्या होगा? इंक्रीज होगा, always increases, always decreases, remains the same, none of this. चलो बोलो क्या होगा? You give me the answer. Okay, खाली एक. What about others? बोलो. There is a hole in the middle of the plate. एक प्लेट के बीच में क्या है? होल है, राइट? जब मैं वो पर्टिकुलर कॉपर प्लेट को हिट करूंगा, राइट, तो वो होल क्या होगा? बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, हमेशा डिक्रीज होगा, सेम ही रहेगा, या नन ऑफ दिस? चलो, व्हाट अबाउट अदर्स? कम ऑन फास्ट, आपको जो लगता है वो बता दो आप. ओके, देन आई विल गिव यू द लॉजिकल आंसर कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. बोलो, बस ओनली 4 पीपल. व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, देखो, मेरे पास एक आई विल गिव यू द एग्जांपल. लेट्स से कि मेरे पास एक मेटल प्लेट है, राइट, उसके सेंटर में ऐसा एक होल है. ओके, जब मैं उसको हीट करूंगा, ओके, जब मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे उसको हीट कर रहा हूँ. ओके, तो जब मैं उसको हीट करूंगा, ऑब्वियसली, तो क्या होगा? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरियल एक्सपांशन. ओके, एरियल एक्सपांशन में क्या होता है? दिस इज अ प्लेट. प्लेट बोला है मतलब इट हैज 2 डायरेक्शन, एक है ये डायरेक्शन, दूसरा है ये डायरेक्शन. ओके, तो हमेशा वो ऐसे बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बढ़ेगा. ओके, सो जब मैं उसको हीट कर रहा हूँ, सो माय कॉपर प्लेट इज स्टार्ट गेटिंग इंक्रीजेस, मतलब उसका जो एक्सपांशन होना स्टार्ट हो गया. और ये एक्सपांशन क्या करेगा? दोनों साइड में होगा, ये साइड में भी और ये साइड में. सो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल गेट द प्लेट, माय प्लेट विल बी लाइक दिस. ओके, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ एक्सपांशन. तो ऑब्वियसली जैसे ही मेरा एरिया बढ़ रहा है, ओके, ऑब्वियसली उसके बीच का सर्कल भी क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, राइट? इट विल कांस्टेंट expansion from all side. Okay, so what is the correct answer? It has to be always increases because my copper plate is getting expanded. Remains the same कब आएगा? जब आप नॉन मेटल के साथ डील कर रहे हो. ओके, बट इन केस ऑफ मेटल इट ऑलवेज एक्सपांड, राइट? सो जैसे ही वो एक्सपांड होगा, उसका होल भी क्या हो जाएगा? एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू.